एनके सिंह है। मैं लगभग 27 वर्षों से नीट के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं इन ड्यूरेशन में लगभग बहुत जगहों पर फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ। इनमें से कोटा एवं दिल्ली प्रमुख है। पिछले क्लास में मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। आप मेरे पिछले वीडियो को ऑब्जर्व कर लेंगे। आज मैं उसके आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो फोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? मान लो more than 3 charges, more than 4 charges, more than 2 charges, a number of charges are given, and we want to find net force on a particular charge. Then we can use principle of superposition. Force is a vector quantity, as we know. मान लो यहां पर एक चार्ज है, वह है Q नॉट। वी वांट टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, Q2 एंड जस्ट लाइक Qn चार्जेस। फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 इज Q F1 F नॉट 1 वेक्टर। फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2 F not 2 vector. Force on Q naught due to Qn F not n vector. So there are so many forces, and if you want to calculate net force on this particular charge Q naught, then F naught vector equal to F naught 1 vector plus F naught 2 vector plus F naught n vector. In other words, we can say that force between two charges or force between 2 point charges is unaffected by the charges present in the surroundings. मान लो Q1, Q2, Q3 3 चार्जेज है और Q1, Q2 के बीच में हमें फोर्स निकालना है। तो Q3 के प्रेजेंट होने से Q1, Q2 के बीच का जो फोर्स है वो अनअफेक्टेड रहेगा। अब मान लो हमें निकालना फोर्स Q1 और Q0 के बीच में, तो बाकी जो चार्जेज हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 1 by 1 we will take it. पहले लेंगे Q1 को, फिर लेंगे Q2 को, उसी प्रकार से Q3, Q4 ऐसे लेंगे Q1 तक जाएंगे। सारे का लेंगे वेक्टर सम। सो वेक्टर सम ऑफ all the individual forces will give the resultant force, and this is called principle of superposition. मैंने एक पॉइंट कहा है, that's very important. Electrostatic force between 2 point charges is unaffected by the charges present in the surroundings. This is principle of superposition, जिसको हमने लिखा है वेक्टर फॉर्म में ऐसे करके। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, और देखें कि कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। जस्ट यू कंसीडर दिस एग्जाम्पल। Q is present, a small q is present at the center. This is capital Q charge and capital Q charge. What should be the value of a small q? What should the value of a small q so that the system will be in equilibrium? The term is system will be in equilibrium. यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है उसका क्या मतलब है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उसका क्या मतलब है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितने भी चार्ज यहां पर हैं, यहां पर कैपिटल Q, स्मॉल q, capital Q, on each and every charge net force will be 0. अगर हमने ये कहा होता कि स्मॉल q इक्विलिब्रियम में है
तो कोई भी चार ले लो, ये दोनों चार जो रखे हुए हैं लेफ्ट और राइट वो कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कहता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो होगा ही, इसके जो लेफ्ट और राइट में है वहां पर भी नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स जीरो करके देखते हैं पहले। तो इसके बीच फोर्स क्या होगा, के कांस्टेंट जो हम लेते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4r square equal to 0. This implies kq upon r square. This is equal to minus kq square upon 4r square. So q will get cancelled here. One q will be left. Q will get cancelled. R square will get cancelled. This implies q equal to minus q by 4. And this is a very famous question asked so many times in NEET exam. Q equal to minus q by 4. And if the option is given capital Q by 4 only plus q by 4, that's wrong. Because if you are taking plus and this is plus, this is plus, this is plus, this and this both are positive, this repellent, again this is repellent, so net force is not zero. Again here, if it is positive, this repulsion force will act, so net force will be in this direction, so net force is not equal to 0. But if you are taking a minus q by 4 in this place, so this force between q and q will be repulsion, ये दोनों के बीच में लगेगा रिपल्सन का फोर्स और ये करेगा अट्रैक्ट, तो नेट फोर्स यहां पर जीरो हो जाएगा। सो स्मॉल क्यू की वैल्यू होगी माइनस क्यू बाई 4 फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक अलग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी यहां पर कोशिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करने का। अब यहां पर स्मॉल क्यू है, यहां पर स्मॉल क्यू है, इन दिस डायरेक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। जिस चार्ज पर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है उसी के बारे में सोचें, बाकी के बारे में नहीं सोचें, एक बार में केवल एक फोर्स के बारे में। अभी यहां पर हम निकालना चाहते हैं सी पर, तो यहां पर क्यू और क्यू के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा और जाएगा टुवर्ड्स राइट, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये डी है, डी है, डी है, इक्वेटर ट्रायंगल। इट मींस दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री and force is in this direction. This is force F, force on C due to A. Again minus Q and plus Q, attractive force. So minus Q will attract plus Q in this direction. And this here is F, C, B. Like this. It means that FCA vector mod of this equal to FCB vector, this is equal to F. And angle between these two forces FCA vector and FCB vector is 120 degree. This is 60 degree, this is 120 degree. So FC equal to under root f square plus f square plus 2f square and cos 120 degree. Cos 120 degrees minus half, so you can write here f square plus f square and minus 2f square into half. So this is F. So FC equal to F, yani at 120 degree, if this is F, if this is F, resultant is also F, and F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q square divided by D square.
दिस इज Fc. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज at C, that is Fc, is given by 1/4 pi epsilon naught q square upon d square. Angle between the two forces is 120 degree and cos 120 degree is minus half. इस लेक्चर को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरे प्रीवियस वीडियो को आप ऑब्जर्व करें और देखें उसको। जब हम उस वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं और क्वेश्चन लेते हैं दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज दैट यू आर टेकिंग दिस इज कैपिटल Q, this is capital Q and capital Q. This is a square and side is A, side is A, side is A, side is A. Diagonal. This is body diagonal. This is Q charge, this is Q charge. You take positive charge. What should be the value of charge Q? What should be the value of charge Q so that the system will be in equilibrium? Again the question tells system will be in equilibrium. 4 charges at 4 corners plus Q plus Q plus Q plus Q are given. A small Q is at a center. This is center, suppose at O. And what charge? A small Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? A small Q की वैल्यू so that system will be in equilibrium. इवन यहां पर कोई भी चार्ज प्लेस करे तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। Q यहां पर स्मॉल Q है, अगर पॉजिटिव ले लेंगे इधर जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहां पर हम वैल्यू लेते हैं नेगेटिव ऐसे तो ये अट्रैक्ट करेगा 0 हो जाएगा। अब हमें स्मॉल Q की वैल्यू किस प्रकार से रखें, जैसे मैं क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था, आपको याद होगा, ये लिया था मैंने 3 स्ट्रेट लाइन में। अब यहां पर स्क्वायर सिस्टम लिया तो यहां पर तो 0 फोर्स है ही, इस चार्ज पर जितने भी कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं वहां पर भी फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि जितने भी कॉर्नर पर चार्ज है सारे पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो किसी एक कॉर्नर पर 0 कर देते हैं फोर्स को। Let us suppose I am taking this charge. अब इस पर कहां से फोर्स लगेगा? एक फोर्स यहां पर फोर्स 0 तो होगा ही, यहां पर 0 कर रहे हैं फोर्स को, यहां पर 0 फोर्स किया जा रहा है। इस पॉइंट पर इसका एक फोर्स होगा Q का जो इधर आएगा ऐसे, मान लो ये F1, इसका एक फोर्स होगा जो इधर जाएगा, मान लो ये F2 है, ये F1 वेक्टर मान लो और F2 वेक्टर मान लो। F1 वेक्टर इसको हमने मान लिया, प्लस Q के बीच में रिपल्सिव फोर्स, प्लस Q के बीच में रिपल्सिव फोर्स F2 वेक्टर। और यहां पर जो फोर्स लग रहा है यहां पर ये Q है और ये Q है, यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है, ये प्लस Q है, ये जाएगा इधर, इसको माने F3 है, F3 वेक्टर, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। F1 F2 का जो रिजल्टेंट है F3 पर जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, F1 इक्वल है F2 इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये 45 डिग्री पर जाएगा, तो इसके इक्वल ये बनेगा। तो इसका वैल्यू क्या है? कि इसका देगा 90 डिग्री पर है तो रूट में आता है, 90 डिग्री पर है अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दोनों सेम है तो रूट F हो गया। तो ये जो वैल्यू आ गया हमारा इसका मिला करके √2k Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। इसका वैल्यू है KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर,
इसका वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 90 डिग्री पर है तो आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2, इतना आ गया। और यहां पर इसकी जो वैल्यू है, यहां पर इसके बीच यहां पर प्लस कर दो, ये फोर्स इसी पर जा रहा है, इसका रिजल्टेंट इसी पर जाएगा, 45 डिग्री पर था तो प्लस कितना हो जाएगा इसके बीच का, तो के क्यू स्क्वायर और ये जो डायगोनल है बॉडी का रूट 2a, तो रूट 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगा a है और ये वैल्यू a है तो आएगा रूट 2a होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया इतना। और ये इस डायरेक्शन में, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगे, यहां पर चार्ज हमने क्यों रखा है, पता नहीं क्या होगा, नेगेटिव जो भी है, अब इसके बीच फोर्स लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना प्लस के क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है, यहां पर ये वैल्यू है रूट 2a, यहां से यहां तक क्या है रूट 2a और उसका ये हाफ है, तो डिवाइड बाई 2, तो ये बाई रूट 2, तो ये वैल्यू हो गया आपका a अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। यहां पर करो, ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, इसी पर जाएगा रिजल्टेंट, यहां पर आ गया, तो रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां पर एक 3 है, इसके बीच का फोर्स के क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस रूट 2a का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर, और एक फोर्स और लगेगा यहां पर जो इसको बैलेंस करके जीरो कर सकता है, इसके बीच में लगेगा, तो के क्यू और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये रूट 2a है, डिवाइड बाई कितना हो गया 2, तो ये भाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये होना चाहिए कितना के बराबर 0 के बराबर, ये वैल्यू होना चाहिए कितना के बराबर 0 के बराबर, है ना। अब यहां से अगर वैल्यू आप निकालते हैं स्मॉल क्यू की वैल्यू, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू जो निकल करके आएगी वही आपका आंसर हुआ यहां पर से, तो सब कैंसिल कर दो, यहां पर ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहां पर ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया यहां से, है ना, तो यहां पर क्या बचा के कैंसिल और ए स्क्वायर कैंसिल, तो रूट 2 यहां पर क्यू है, ये इधर चला जाएगा, अब यहां पर कर दो वैल्यू जो है कितना हो गया, के कैंसिल हो जाएगा सब में, तो यहां पर रूट 2 है, तो यहां देखो रूट 2 क्यू को कैंसिल करते हैं, तो रूट 2 क्यू, ए स्क्वायर सब में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 क्यू हो गया, और यहां से आ गया प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, तो यहां पर बच गया आपका क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां बचा हुआ है 2, यहां पर क्या आ गया, एक क्यू खत्म हो गया तो के खत्म हो गया, क्यू आ गया, क्यू डिवाइड बाई यहां पर ए स्क्वायर खत्म हो गया, बच गया रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 है तो ऊपर जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2q इक्वल टू 0, रूट 2q, ये क्यू खत्म हो गया, के पूरे में कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर खत्म हो गया, यहां पर है q बाई 2, एक क्यू बचा हुआ था, ए स्क्वायर खत्म हो गया, अब यहां पर आ जाइए, तो यहां पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल, रूट 2 का स्क्वायर 2 पर चला गया, क्यू कैंसिल हो गया, तो क्यू बच गया यहां पर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहां से कर दो 2q इक्वल टू माइनस q बाई 2 माइनस रूट 2q, यहां से 2q इक्वल टू माइनस q बाई 2 माइनस रूट 2q, दिस इंप्लाइज 2q इक्वल टू, टेक माइनस q कॉमन, तो यहां बन जाएगा वैल्यू हाफ प्लस रूट 2 माइनस q, टेक आउटसाइड 1 बाई 2 प्लस रूट 2, दिस इंप्लाइज q इक्वल टू माइनस q डिवाइड बाई 2, and this is 1 plus
2√2. Q equal to minus Q by 2, and this is 1 by 2, so 1 plus 2√2 and divide by 2, and you have to solve like this. So final answer you are getting, this is, I can यहाँ से आप रब करो तो यहाँ से क्या आ गया, Q इक्वल टू माइनस Q by 4 1 प्लस 2√2. A small q equal to minus Q by 4 1 plus 2√2. So this is the value of a small q. Again the nature is negative. पहले भी आपने क्वेश्चन सोल्व किया था, वहाँ नेचर नेगेटिव आ रहा था. यहाँ पर क्या करना समझ लो ध्यान से, ये वैल्यू सेम है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा 45 डिग्री पर आएगा, इस पर इसी के डायरेक्शन में जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, और एक फोर्स और लग रहा है उसको ऐड करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऐड करने के बाद फटाफट 0 होना चाहिए. यहाँ तो 0 होगा ही, सिस्टम का मतलब है यहाँ किसी एक कॉर्नर पर लेंगे और वो वैल्यू 0 के बराबर आएगा. तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारा माइनस Q by 4 1 प्लस 2√2 आ रहा है. तो इस प्रकार से आप सुपरपोजिशन को यूज कर सकते हैं एक बहुत बड़े हथियार के रूप में, और आगे भी इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी अलग टॉपिक को गेज करने के लिए. तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर है, वीडियो है, उसको भी देखें और उसके बाद फॉलो करें आज के लेक्चर को, जो सुपरपोजिशन पर बेस्ड है, जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है, एंगल पर ध्यान देना है, और जिस पार्टिकुलर चार्ज पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है उसी के बारे में सोचना है. एक फाइनल हमारा सेंटेंस आप सुने, मैंने कहा है कि जब दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है तो बाकी चार्जेस को भूल जाओ कि है अगल बगल, उसी के बारे में सोचो जिस पर, और नेचर के बारे में कि माइनस क्यू है या प्लस क्यू है. तो बहुत आसानी से नीट के क्वेश्चन को जो सुपरपोजिशन पर बेस्ड है आप आसानी से सोल्व कर पाए. आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और उसको जो है सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे हम इम्प्रूव कर सकें, ताकि आप नीट को आप क्रैक कर सकें. थैंक्स अ लॉट.